Have you ever made any purchase just by seeing others doing that? Well, अगर किया है तो just put that in comment section कि आपने ऐसा किया है और किस brand के लिए किया है ये भी बताना. Well, I'll tell you that social proof at work. Okay, and there are two things in this. One is it can be a good strategic move for a brand, or you can call it a confusion जिसकी वजह से customer बहुत impulse decision ले लेता है. ठीक है. So welcome to the another episode of Branding Blueprint with Sudhanshu. I am Sudhanshu Malik, your host. So today we have Shraddha Agarwal with us. She is co-founder and global CEO of Grapes Worldwide. Welcome, Shraddha. Thank you. And thank you so much for accepting my invite. So what according to you is branding? I'll tell you why I'm asking this question. जब भी मैं ये question पूछता हूँ ना, in my podcast also, every time I get a different answer to it. So what according to you is branding? I think branding is very simple. People complicate it a lot more. Okay. For me, branding is a one word, equity that we define for any brand. So let's pick up brands. Okay. You take what is Dove to you, self-esteem. Right. What is Kit Kat for you, a break. What is Victoria's Secret, sexy. What is Red Bull, adrenaline. Adrenaline. Right. Everyone, like even I, if you speak to journalists around, right, they'll be like, what is one word for Shraddha? Bindas, right? Every brand should have one word attached to it. Okay. Now, anything that you do around that brand should be around that word. So if you do a marketing activity, it should reflect that one word. Okay. Otherwise, you're just a product. Then you're not a brand. And people don't have the time and energy to remember 100 things about you. Now, when you say one word for this brand, right, that becomes your social proof, right? Okay. Why? Because anybody who is talking about your brand, let's say you and me are talking about Apple Watch, right? All of a sudden, if I can't tell you that Apple is creativity or Apple is innovation, like Lego is imagination, right? The social people around you, or that entire resonation of that word in the social world becomes less. Right. So that's what I think branding is. So आपने social proof की बात करी. Social proof होता क्या है और brands इसको कैसे utilize करते हैं? See, social proof is basically letting people talk about you. Okay. Right? If I can't make 5 people on a group talk about me, I am lacking as a brand from a social proofing perspective. Okay. So let's say I'm a part of a lot of mothers group. Okay. If you look at mothers brand, like I work on Mami Poco Pants. Okay. And if you ask anybody a question on a diaper, right? The only 2 brands that come on that group is Pampers or Mami Poco Pant. Right. Now that is called social proofing. You don't have to create a loudspeaker and talk about your brand. There are people who will start talking about your brand. So जैसे हम सही मायने में word of mouth कहते हैं ना, that is what social proofing is. Okay, okay. But nowadays customers switch brand very easily and conveniently. मतलब even if you talk about Zomato or Swiggy, Zomato पे अगर मेरे को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिख रहा होगा तो मैं इमीडिएटली स्विच करके Zomato से ऑर्डर कर दूंगा, स्विगी छोड़ दूंगा. So इस सिचुएशन को ब्रांड्स कैसे लेते हैं? Yeah, so the entire country India ना अभी ना एक स्टेज ऑफ एवोल्यूशन से गुजर रहा है. हमें ना मजे आ रहे हैं लाइफ में, राइट? कभी कोई कुछ दे रहा है, कभी कोई कुछ दे रहा है. वी आर लाइक किड्स जिसको ना 10 रिश्तेदार घर में आ गए और वो कोई ना कोई आपको ब्राइब दे रहे हैं, राइट? एंड आप मजे ले रहे हो सब रिश्तेदारों के साथ, कभी कुछ ट्राई कर रहे हो, कभी कुछ ट्राई कर रहे हो. दिस इज व्हाट द राइट नाउ द ब्रांड वर्ल्ड हैज बिकम, राइट? There's too many offers in the market. Now what will stick with you is innovation. So as a person, I am, मुझे ना एक रेंज तक या एक कैटेगरी तक इनोवेशन चलता है. So for example, अगर आप ये कुर्सी को बेटर कर सकते हो डिजाइन में, कंफर्ट में, ये मेरी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, तो अगर आप इसमें इनोवेशन ले आओगे ना तो मुझे ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे नई चीज ट्राई करनी है, राइट? लेकिन अगर आप कुछ ऐसी चीज बना रहे हो जो खाना है, मुझे अपने बॉडी के अंदर डालना है या मुझे अपने स्किन पे लगाना है, तब मुझे इनोवेशन के साथ साथ ब्रांड का नाम चाहिए. Right? Okay. Because I need some kind of authenticity of where it is going. इन दोनों के बाद सपोज करो 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो सिमिलर इनोवेशन दे रहे हैं या सिमिलर ब्रांड लेवल दे रहे हैं, उसके बाद आता है वन वर्ड इक्विटी. राइट? कि यार इनोवेशन भी मिल रहा है, मुझे बेसिक ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है, अब उसके ऊपर कौन सा ब्रांड मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, आई विल गो विद दैट.
Okay. क्यों? क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी से रेजोनेट करता है. So that's where branding then becomes a very important thing. So you have to like हमारे पूरे टर्म में ना हम कहते हैं अगर किसी भी कैटेगरी की पेनिट्रेशन 30% से कम है, अच्छा, तो आपको प्रोडक्ट पे बात करनी है और इनोवेशन पे बात करनी है. क्यों? क्योंकि 30% से कम पेनिट्रेशन में you have to focus on educating customers about the category itself. उसके बाद you have to start believing in why your brand is better than the other brand. Okay. And उसके बाद you have to make the person believe भाड़ में जाए सामने वाला ब्रांड आप ही हो और आप ही को लेना है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट या ब्रांड नहीं ऑफर कर रहे हो, आप एक पूरी कम्युनिटी ऑफर कर रहे हो उसके नाम, लाइक रॉयल एनफील्ड. राइट. रेड बुल भी उसी तरीके से करता है. इवन इफ यू चेक इट सोशल मीडिया, रेड बुल की प्रमोशन नहीं होती कहीं पे भी. वो अलग अलग एक्टिविटीज डालते हैं, जो एडवेंचर डालते हैं, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डालते हैं, बट वो कभी भी सो दे आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी अराउंड इट. Exactly. So you have to reach that level that people will start becoming a part of you irrespective of the product. और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट की चिंता नहीं है. So for example, this is the concept called as golden circle. Yes. ठीक है. So अगर मैं Apple हूँ, let's say, and I give this example in a lot of cases. If I say that I am a brand who challenges the status quo because I think different, how do I do this? I do this by making clean UI UX and great designs. By the way, I sell TV. अभी तक आपके दिमाग में चल रहा था यार ये तो एक MP3 प्लेयर थे या फिर आईफोन थे या फिर वॉच थे, कल टीवी भी आ जाएगा ना एप्पल का, हम खरीद लेंगे. Exactly. Right? Why? Because we bought into the ethos of Apple. So when you reach that ethos level now, then you can do a product extension at any level also. Right. So that's the difference. Correct. So we got the brand's perspective कि brands किस तरीके से लेते हैं. Now let's take it from the consumer's perspective. Consumers जैसे multiple options देखते हैं. अगर हम shoes की बात करें और if we just type in sports shoes on Amazon, तो बहुत सारी लिस्ट आ जाती है. Now एक सर्टेन कैटेगरी के अंदर भी मे बी बिटवीन 2000 और 3000 की रेंज में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं. नाउ कंज्यूमर स्टार्ट्स गेटिंग कंफ्यूज कि मेरे को कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि उस रेंज में उसकी लॉयल्टी नहीं होती कभी भी. ब्रांड्स उसको किस तरीके से लेते हैं? अगेन इसका जवाब ना काफी ज्यादा आपकी कैटेगरी प्राइस रेंज पे फर्क पड़ता है. सो फॉर एग्जांपल शूज ले लेते हैं एज अ कैटेगरी. ठीक है. So, अगर I am a customer who is looking forward to buy shoes for functionality, तो मेरे दिमाग में ना 3-4 brands already exist कर रहे हैं. Let's say मेरा range of buying shoes is 8,000 rupees to 10,000 rupees. अब 8,000 to 10,000 rupees में मेरे दिमाग में आ गया कि यार Nike जा सकते हैं, Reebok जा सकते हैं, Puma जा सकते हैं, Asics जा सकते हैं. ठीक है, थोड़ा बहुत Under Armour चले जाएंगे. तो हम इन 5 दुकानों में घूमेंगे या फिर हम 5 वेबसाइट्स पे ऑनलाइन विजिट करेंगे. उस प्राइस रेंज में तो कुछ लेवल तक क्लैरिटी होती भी है. मतलब 10,000, 8,000, 10,000 की रेंज अगर किसी के पास है तो कुछ क्लैरिटी होती है. थोड़ा सा लोअर रेंज पे आ जाएंगे तो वहां पे क्लैरिटी ही नहीं होती कि कौन सा ब्रांड के साथ जाना है. यार वहां पे ना ब्रांडिंग इतनी एग्जिस्ट करती नहीं है. अच्छा, वो मास ऑडियंस है. हाँ. ठीक है, एक मास ऑडियंस. आप सोचो एक टियर 2 टाउन में आप जा रहे हो एक मास ऑडियंस के पास जो कि जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी ढूंढता है. वैल्यू फॉर मनी वाले इंसान को आप कितनी ब्रांडिंग बेच सकते हो. आप जितना लग्जरी जाते हो ना उतनी आपको ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है. आज की डेट में अगर डियोर का भी वो वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे बैग बन रहा है सिर्फ $X का और बेच रहे हैं वो लोग $2,800 का. करेक्ट. उसमें फिर भी क्या डियोर की सेल कम हो गई? नहीं होगी. राइट. व्हाई? बिकॉज वी ऑल बिलीव इन दैट ब्रांड. वो कितने का भी बेच दे, वो नाइट सूट बेच रहा है इस तरीके से कि यार आप उसको पार्टी में पहन के जा रहे हो. दैट कॉलर वाज अ टिपिकल नाइट सूट कॉलर. राइट. वी आर स्टिल वेयरिंग इट. राइट. जब आप नीचे जाते हो ना प्राइस रेंज में, हम वैल्यू फॉर मनी बन जाते हैं. हम क्वेश्चन करते हैं लॉजिक्स को, हम क्वेश्चन करते हैं यूटिलिटी को. सो 2000 से 3000 के शू रेंज पे आप हमेशा ये देखने की कोशिश करोगे कि क्या डिजाइन कौन सा बढ़िया है. अच्छा, ओके. ठीक है, क्या ये मैं जब पहन के जाऊंगा लोग देख के मुझे बोलेंगे अरे यार क्या बिंदास शूज पहने तूने, लड़के मजा आ गए. राइट. सो इफ यू डोंट हैव दैट फीलिंग विद द प्रोडक्ट, यू विल नॉट बी एबल टू सेल द ब्रांड. उसके बाद बोलेगा हाँ दोस्त यार मैंने कल ही Asics लिया है, तुझे पता है फैक्ट्री आउटलेट से लेके आऊं, 10,000 का जूता 2 में लेके आऊं. अच्छा. देन यू वांट टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. राइट. सो there is a huge difference. That's why I'm saying there's a huge difference in the category that you operate in and in the price range that you operate in. Shoes is not something that I'm putting inside my body. Exactly. So I'm okay with it. Okay, I'll go with a good design. I'll go with this. That's why even if you look at, I have so many Instagram brands in fashion already erupted. एक टाइम था जब लड़कियां सिर्फ Zara जाती थी और go to temple था उनके लिए. सुबह सुबह जाके दर्शन करके आना, जैसी नया रेंज आया अपने 2-3 चीजें ब्लॉक कर लेना क्योंकि खत्म हो जाएगा माल.
correct. अब हम नहीं करते वो, राइट? हम्म, अब हम इंस्टाग्राम पे इतने सारे डिजाइनर्स हैं जिनको हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि इनमें से कुछ खरीद सकते हैं. हम्म. So there's a huge difference in the price point, the range that you operate in, and the category that you operate. Okay. अब क्या मतलब इसको कैसे समझे कि क्या सोशल प्रूफ इज इट अ शॉर्टकट फॉर अ कंफ्यूज कस्टमर और इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ ब्रांड? It's a journey. ओके. जब ये नए ब्रांड्स आए थे, मामा अर्थ ले लो, अभी आप ओजीवा ले लो, गुड बग ले लो, what are they doing? ठीक है, they are trying to disrupt the category by saying इंडस्ट्री में ये गैप है. लाइक मामा अर्थ सेट इंडस्ट्री में गैप है, जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं. Hence, I don't agree with this product, and why don't you buy my product? Whole truth. इंडस्ट्री में गैप है, आप मेरा लो. स्लब फार्म इंडस्ट्री में गैप है, आप मेरा प्रोडक्ट ट्राई करो. ठीक है. At that stage, when you are in your journey, then you should talk about your product and innovation, the gap that the consumers are facing. Okay. Now, when you look at, like, I met another client, okay, who I was speaking, and she is in this skincare department. So, in a way, जैसे अभी इंडस्ट्री जो है बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रही है और जैसे आपने बोला कि एक्सप्लोड हो चुकी है और अभी भी कर रही है. सो ऐसे में बहुत सारे नए नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं, बीट कॉस्मेटिक्स, बीट फुटवेयर, बीट एनी क्लोथिंग ब्रांड, कुछ भी. तो गैप ढूंढना तो डिफिकल्ट नहीं हो रहा अभी इस वक्त? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो कैटेगरी सैचुरेट हो रही है. तो अगर आप उस कैटेगरी की सैचुरेशन पे जाओगे तो आपको, तभी हम कहते हैं ना कि ये वाला कैटेगरी क्लटर्ड है. सो आपको चूज करना है कि आप क्लटर्ड मार्केट में घुसना चाहोगे और एक नीश कैसे बनाओगे. तो आपको गैप्स ढूंढते रहने पड़ेंगे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपन इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं ना, तो होता है कि एक बेंचमार्क हाइजीन बन जाता है, उसके बाद नया इनोवेशन आता है. करेक्ट. सो फॉर एग्जांपल, अब हम कह रहे हैं कि लेट्स से रेसिडेंशियल में ले लेते हैं. वी वांट टू हैव अ मार्केट व्हिच इज टॉकिंग अबाउट कि यार मुझे एक बिल्कुल ही इको फ्रेंडली सस्टेनेबल घर में जाना है. ठीक है, लेकिन ये जो घर है उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स होने चाहिए, एक लेक भी होना चाहिए, गोल्फ कोर्स भी होना चाहिए, खुली खिड़कियां भी होनी चाहिए, AQI भी होना चाहिए. नाउ दिस इज बिकमिंग हाइजीन फॉर यू टू बाय अ न्यू हाउस. करेक्ट. लेकिन इसमें इनोवेशन क्या आएगा? मच्छर नहीं होने चाहिए, बटरफ्लाईज होनी चाहिए, बट मच्छर नहीं होने चाहिए. करेक्ट, राइट? सो दिस इज व्हेन यू स्टार्ट फाइंडिंग गैप्स इन एवोल्यूशन आल्सो. Okay. So every cluttered market with evolution will create an industry gap, and that's when you can target the consumers. Okay. Let's talk about paid जो influencers होते हैं. I mean, just for a smaller chunk of money, वो कोई भी ब्रांड है, बीट और एक्चुअल अच्छा ब्रांड कोई हो या कोई ऐसा ब्रांड जो अभी मार्केट में आया है, अभी इनोवेशन स्टेज पे है, या उसने अपने प्रोडक्ट्स को इतना इवॉल्व नहीं किया है. ठीक है. सो दैट मीन्स अभी भी वो अंडररेटेड प्रोडक्ट है. बट पेड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उसको मतलब फॉर अ स्मॉलर चंक ऑफ मनी वो इसको प्रमोट करने को रेडी हो जाते हैं. तो कंज्यूमर तक जेन्युइन प्रोडक्ट पहुंचता है या कंज्यूमर तक सिर्फ एक स्टोरी पहुंचती है, प्रोडक्ट नहीं पहुंचता? सी आई थिंक हमने ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स को ग्लोरीफाई कर दिया है बिकॉज ऑफ द वर्ड कॉल्ड एज वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है, द टर्म वर्ड ऑफ माउथ. बिकॉज हमें लगता है कि अगर कोई रैंडम बंदा इसके बारे में बात कर रहा है तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. बट आई थिंक लाइक जैसे हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, वी हैव आल्सो इवॉल्व. नाउ हमें पता है कि यार एक इन्फ्लुएंसर का चैनल ना एक वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, वो एक टीवी चैनल है. ठीक है, या एक न्यूज़पेपर चैनल है आपके लिए. करेक्ट. आपको ये सोचना है बस कि इस इन्फ्लुएंसर की रीच कितनी है और क्या ये इन्फ्लुएंसर मेरे ब्रांड पर्सनालिटी से मैच करता है कि नहीं. ठीक है, देन ऑल ऑफ अ सडन आपको वो अजीब लगेगा नहीं. आप क्या क्वेश्चन करते हो जब आप रात को NDTV या सोनी टीवी देखते हो, उस पे बीच में क्या ऐड आता है, तो इसका क्या मतलब है, ये इस चैनल के बीच में क्यों आया है? नहीं करते हो, राइट? सिमिलरली यू कांट क्वेश्चन इन्फ्लुएंसर्स बैंडविड्थ लाइक दैट. अब अगेन इसमें कैटेगरी का एक एंगल आता है. अगर सपोज करो जैसे मैं मासूम मीना वाला को देखूं, वो डाबर हनी खा रही हो, तो मैं क्वेश्चन करूंगी. एग्जैक्टली. ठीक है, कि वो डाबर हनी क्यों खा रही है? शी शुड हैव अ बेटर ब्रांड टू ईट और ड्रिंक, राइट? बट अगर यही एक 2-3 हजार रुपए वाला समय रहना कोई सीरियस ऐड करेगा तो वैसे भी क्वेश्चन होगा. एग्जैक्टली, राइट? क्योंकि आपने क्या सोचा, इट्स लाइक बॉलीवुड एक्टर कि वो एक ब्रांड को सपोर्ट करता है, अच्छा लगता है. सो फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम व्हेन रणवीर सिंह यूज्ड टू कैरी JBL स्पीकर्स ऐसे ही, क्योंकि उसको JBL स्पीकर्स बहुत पसंद थे. राइट. ठीक है, तो वो कहीं जाता था ना, अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको कैरी करता था. सो नाउ यू बिलीव्ड इन दैट ब्रांड, राइट? सिमिलरली अगर आज एक छोटा इन्फ्लुएंसर ब्रांड जेन्युइनली प्रमोट कर रहा है या फिर वो उसके जेन्युइन बेनिफिट्स बता रहा है, तो हम उसको एक अवेयरनेस की तरह लेंगे. हम उसको कंसिडरेशन फेज में नहीं लेके जाएंगे. उसके बाद जब मैंने वो एड देख लिया तो आई विल कंपेयर
कि यार Correct, मुझे कौन सा correct. दो ब्रांड खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है. हम्म, लेकिन अगर वो ब्रांड का प्राइस पॉइंट ही 500, 600, 1000, 2000 रुपए, लाइक एवरेज टिकट साइज टुडे ऑन इंटरनेट हैज बिकम 1800. हाँ 1800, 2000 रुपए का कोई भी सामान, कोई इन्फ्लुएंस है तो मैं इंपल्स बाइंग भी कर सकती हूँ. नहीं फर्क पड़ता मुझे, कपड़े हैं कोई फर्क नहीं Correct, पड़ता, जूते हैं कोई फर्क नहीं. गाड़ी आप एक इन्फ्लुएंसर बेच के दिखाए, नहीं बेच सकता. इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के दिखाए, रियल एस्टेट नहीं बेच सकता इन्फ्लुएंसर. क्यों? क्योंकि Correct. इंपल्स परचेज नहीं है. तो मैं क्या करूंगी, वो मैं अवेयरनेस की तरह कंसिडर करूंगी और फिर मैं अपनी खुद की रिसर्च करूंगी. लेकिन एक छोटा टिकट साइज है तो कोई बात नहीं यार, उसने मुझे अवेयर करा दिया, मुझे पसंद आया, मेरा इंपल्स परचेज है, मैंने खरीदा, आगे बढ़ो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. Okay. So it is a good methodology, but you need to understand what is the objective of using them. Okay, okay. So have you watched that ad जिसमें ऋतिक रोशन खड़ा होता है और उसके पीछे से बर्गर किंग का पूरा बैनर आता है, पर ऋतिक रोशन तो बर्गर नहीं खाता होगा, मुझे नहीं लगता वो जितना फिटनेस फ्रीक है वो बर्गर खाता होगा. तो इस पर्टिकुलर एड को कैसे लिया होगा लोगों ने? यार हमें ना हम कुछ चीजों में ना एक ऑब्वियस डिटैचमेंट ले आए हैं, ठीक है. सो हमें पता है कि यार अच्छा ऋतिक रोशन अगर इस एड में आ रहा है तो ये ब्रांड बड़ा है, अच्छा, ये ब्रांड क्रेडिबल है. बट आपको क्या ये सोचना है कि ऋतिक रोशन उस ब्रांड को खाता होगा? नहीं. फॉर एग्जाम्पल आलिया भट्ट ऑल्सो वेंट एंड सेड मैं शुगर नहीं लेती हूँ. हम सबको पता है यार ये लोग शुगर नहीं खाते हैं. लेकिन अगर ये कोई कैंडी ब्रांड या ये लोग कोई और कोई सीरियल ब्रांड जिसमें है शुगर प्रमोट कर रहे हैं तो हम अज्यूम नहीं कर सकते ये लोग खा रहे होंगे, राइट? बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी सच अ बिग फेस ऑन अ ब्रांड, यू ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट बिलीविंग दिस ब्रांड इज बिग. अच्छा, this is not a small brand. It's not like that another startup online which can shut tomorrow. Right? So you believe in the backing of that brand कि अगर आप कल खरीद लो और कोई तकलीफ हो और मैंने कस्टमर केयर पे फोन करके हल्ला मचाया तो ये ब्रांड कुछ करेगा, कोई सुनेगा मेरी. वरना कोई D2C ब्रांड है जिसमें कोई है ही नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आप क्वेश्चन करोगे कि यार मैं इस ब्रांड को लूं भी कि नहीं. ओके, या सो but what I liked about that ad in specific was the new innovative way of talking about. Yeah, वो innovation तो था जिस तरीके से ऊपर आता है वो बहुत अच्छा था. So that is something. So as a customer ना अगर कोई ad आपकी आईज में ट्विंकल ला सकता है, एक आहा मोमेंट ला सकता है, या स्माइल ला सकता है, या आपको रुला सकता है, so then that is a good creative. कोई एक इमोशन इंस्टिगेट होना जरूरी है आपके कैंपेन के थ्रू. करेक्ट. यू टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन कि मार्केट अभी भी इवॉल्व हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग भी इवॉल्व हो रही है अभी. एंड आई ऑलवेज से दैट डिजिटल मार्केटिंग करंटली इज एट अ वेरी नेसेंट स्टेज एंड यू एंड आई मे बी हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है मार्केटिंग की, ठीक है. आज की जनरेशन और जब हम करते थे काम, जॉब्स करते थे, उसमें कितना डिफरेंस आया है? आज की जनरेशन कैसे परफॉर्म कर रही है? आई थिंक बहुत डिफरेंस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम तो बीप हो जाएगा. I think the current generation, except for the fact that they are confused a lot of times, but they're also very clear at the bottom level what they want. From a buying perspective now, it's this generation's world, because what happens is when they, and specifically short term buying, because this generation knows मुझे अगले 10 मिनट में, अगले 15 मिनट में क्या चाहिए. Okay. Why do I need this dress? Why do I need this product? Why do I need this? And they can logically evaluate why do I need these things. ठीक है. We were a little more emotional in terms of our buying. So that's why you'll see a girl wearing a Sarojini Nagar top also at $100 and carrying it really well. I remember watching this interview where this guy said, what is the best fashion tip? Okay. And the answer was fitness. Right? Yeah. So if you are genuinely great with your body, whether you wear a 100 rupees top from Sarojini Nagar or a $1,000 top from Louis Vuitton, you will look hot. Right? So these guys are able to evaluate that very easily. But still, the challenge with this generation is that they are not able to keep their loyalties to so strong. Okay. Right? So for them, you have to genuinely create a community of why you're going. It's more important in this cluttered market, specifically in digital marketing, for them to be bought into you as a brand. Even when you look at the ways that you market to them, if you're not authentic, if you're not bold, if you're not intuitive, if you're not somebody who is honest to them, right? And you can't give them the logic of why they should purchase you, you've lost the battle.
Yes. right? So it's very, very important for you to understand how you market to them. Mhm. And then comes, where do you market to them? Okay. So if you continue to think, यार इसको तो मैं टीवी पे ही पकड़ूंगा क्योंकि यार टीवी थी यार, टीवी होते हैं, but you need to understand वो टीवी देख ही नहीं रहा है, वो सोशल मीडिया देख रहा है. Correct. सोशल मीडिया पे भी if you are thinking of running your ads 24/7, it's a waste of money. He is watching ads only from 10 p.m. in the night to 2 a.m. in the night. Right. Correct. So you need to think through very clearly who is those audience, what kind of communication you need to give them, and what platform. Yes. And also open. For example, Clubhouse was a big thing during COVID. Yeah. And it died. Yes. Let's be honest, it became an orgy and finally it died, right? So at the end of the day, but at that moment, it was a great place. So if you as a brand are not agile enough to say, let's do a campaign on Clubhouse, because my audience is currently there. Correct. हम तब ना एक बोर्ड रूम में क्वेश्चन ही कर जाते हैं कि यार अच्छा क्लब हाउस बताना, हाउ इज इट परफॉर्मिंग. फिर वो 6 पेज का आर्टिकल बनेगा, 10 प्रेजेंटेशन बनेगी, फिर एक डिसीजन होगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फास्ट एडवर्टाइजिंग, राइट? वेयर यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड दैट आप एक एनुअल ऑपरेटिंग प्लान बनाते हो इस ऑडियंस के लिए जो आप पूरे साल कर रहे हो, लेकिन बीच में आपको एक बफर रखना है बजट का जो सिर्फ फास्ट एडवर्टाइजिंग में जाएगा. Exactly. जो रैंडमली आ सकता है. एंड दिस इज हाउ यू टारगेट दिस जनरेशन वर्सेस द अदर जनरेशन. Right. I think as the two generations now, Gen Z is a dream of a brand, but a nightmare of a marketer. And why do I say that is because आज की डेट में उनके पास disposable income बहुत high है, right? So if you want to, and the audience size is also very high because we are, as a country, we are a young country, right? Our average age is below 30. So we have more money in that segment. So हर brand को ऐसा लगता है कि अगर Gen Z मान जाता है मेरे brand के लिए तो मेरी सेल बढ़ जाएगी. But अगर यही Gen Z ऑफिस में आ जाए और इनसे काम करवाना हो so it's a nightmare. So I think, but yes, for a brand, it's a great idea. How's Grapes doing? Oh, touch wood, I think it's doing really well. That's why you see me still working with Grapes. Yeah. I think it's been a lot of hard work. Now we are almost 250 plus people strong. Wow. Across 4 offices. So we have 3 in India, which is Delhi, Bombay, Bangalore. We've just opened a London office. Yes. And now we are looking forward to Middle East. I saw that post also. Yeah. So, and along with that, so with Grapes, the best part is we are not your social media agency. We are not your media buying and planning agency, right? We are genuinely working as your partners. Okay. Where we say, कि यार अगर आपका ब्रांड या बिजनेस पॉइंट ए पे है और इसको पॉइंट ए से पॉइंट सी तक लेके जाना है अगले 2 साल में, सो व्हाट विल बी द जर्नी एंड व्हाई विल दिस जर्नी बी, राइट? So we are very strong with strategic partners with our clients, which helps us in terms of taking brand from point A to point B, which is very important. Yeah. The second thing what we've done is because we are strategically driven, we are a one-stop solution for you. So if we partner with you and say कि boss अच्छा ठीक है, let's say आपका brand है, आप कह रहे हो कि यार मेरे को ना मेरा brand salience बढ़ाना है या मुझे online पे sales बढ़ानी है. We offer 47 odd services in digital today. Oh, yes. Okay. अभी भी कुछ बची हुई है जो हम नहीं ऑफर करते. अच्छा. But आपको क्या 47 सर्विसेज की जरूरत है एक साल में? नहीं है. बट हम क्या कहते हैं, हम एक ब्रीफ देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार, आप एक काम करो, मुझे सोशल मीडिया बता दो, एसईओ बता दो, ईमेल मार्केटिंग बता दो, मुझे वेबसाइट का रिवैम्प बता दो, मुझे पीआर भी बता दो और इन्फ्लुएंसर बता दो. मैंने पूछा अच्छा ठीक है, ये सब तुम कर देंगे, आप ये बताओ आपको करना क्या, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? सो फॉर एग्जांपल टकीला ब्रांड केम टू अस एंड दे वर लाइक कि यार मुझे ना श्रद्धा आपसे सोशल मीडिया चाहिए, वेबसाइट चाहिए, पीआर चाहिए, एसईओ चाहिए और मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग चाहिए. अच्छा, ओके. मैंने कहा वेरी गुड, मैं आपको एक रेट कार्ड भेज देती हूँ, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने क्या माल बेचना है आपको? He was like मुझे 20,000 कैस्केट्स भेजने हैं. मैंने कहा ये तो घर घर जाके भी बिक सकते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है आपको? So we are not staying true to our objective, right? As a result of which what is happening is we are running behind services. And फिर जब सर्विस की बात आती है ना, आप ये ढूंढते हो इस सर्विस में सबसे बढ़िया बंदा कौन है, Exactly. या सबसे बढ़िया एजेंसी कौन है. वो एजेंसी आपको चाहिए ही नहीं. सिमिलरली टॉपिकल मार्केटिंग एक और एग्जांपल लेते हैं. हमने एक सर्वे किया इंटरनली और हमने देखा कि ऑलमोस्ट 42% ऑफ माय रिसोर्स एनर्जी एंड क्लाइंट एनर्जी वाज गोइंग इन डिफाइनिंग टॉपिकल पोस्ट ऑफ द ईयर. अच्छा, okay. 42% of the energy. That's huge. Is huge, right?
सुबह सुबह 6 बजे दिवाली के पोस्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा, इसका क्रैकर पूरा बुझ नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, यही पागलबंदी चल रही होती थी. एंड आई लिटरली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद द क्लाइंट. मैंने कहा अपने दिवाली का पोस्ट जाने दो, इसको ग्रीन ब्लू ब्लैक करके क्या फायदा होगा अभी आपको. सो ही वाज लाइक नहीं अच्छा नहीं लग रहा. मैंने कहा किसको अच्छा नहीं लग रहा, आपको या कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा, राइट? Let's not argue on subjective things beyond the point, right? You're wasting everybody's time and my time and your energy and my energy both. And then we created a model in-house called as COT. Okay, what is COT? COT stands for Class Ownership Topical. Nice. Now class is basically every social media day. So they are 365 दिन, but हमने एक list बनाई और हमें 403 दिन मिले social media के. अच्छा. So we can literally celebrate more than one day in a year. Okay. And then we said आप सारे दिन को चूज कर लो पहले कि आपको ये दिन कौन सा लेना है. तो हमने सारे डेज को क्लासिफाई कर दिया कि ये रीजनल डे है, नेशनल डे है या इंटरनेशनल डे है. तो रीजनल हो गया आपका पोंगल बिहू, नेशनल हो गया दिवाली, इंटरनेशनल हो गया क्रिसमस. लेट्स से ठीक है. अब इन सारे डेज में से आप अपनी ओनरशिप डिफाइन करो. आपको ये दिन क्यों लेना है और कैसे लेना है. सो हमारी ओनरशिप डिफाइन होती है 3 लेवल पे. से हाय, स्मॉल टॉक, कॉन्वर्सेशन. ओके. से हाय मतलब जी नमस्कार जी, हैप्पी दिवाली जी, सब चंगा जी, खत्म. इससे ऊपर कुछ नहीं करना. दैट मीन्स से हाय पोस्ट शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स ऑफ योर एनर्जी. क्योंकि आपको सिर्फ से हाय बोलना है, हैप्पी दिवाली व्हाट्सएप पे डालना है ना. इससे कोई सेल नहीं बढ़ने वाली, कोई ब्रांड सेलियंस नहीं बढ़ने वाला. लेकिन सामने वाला बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप हैप्पी दिवाली विश कर दोगे उसको, जैसे आप व्हाट्सएप पे देख रहे हो. अब तो हम ये भी भूल जाते हैं किसने हैप्पी दिवाली विश किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब तो कॉपी पेस्ट होके जाते हैं. एग्जैक्टली राइट. Until unless you do a innovation in say hi also. So as a brand then one word equity will come back कि आप say hi कितना इनोवेटिवली बोल सकते हो. ठीक है. अगर स्मॉल टॉक है तो उसमें भी आप चूज करो कि आप कौन से दिन ओन करना चाहते हो स्मॉल टॉक पे. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फूड ब्रांड हूँ, लेट्स से कैच मसाला, मैं सारे रीजनल फूड फेस्टिवल्स ओन करूंगा या फूड डेज ओन करूंगा. फॉर एग्जाम्पल बिहू ओन करना है, पोंगल ओन करना है, ओनम ओन करना है, दिवाली. लेकिन मेरा एंगल क्या है एज अ कैच? मेरी स्मॉल टॉक का एंगल है कि मैं हर फेस्टिवल में आपको बताऊंगा कि भोग कौन सा लगता है और ये भोग क्यों इंपॉर्टेंट है. नाउ कैच इज बिकमिंग अ पार्टनर फॉर यू टू टेल यू व्हाई दिस फेस्टिवल इज इंपॉर्टेंट विद फूड एंगल. राइट. सो आई एम बिकमिंग अ ब्रांड who is celebrating the food of each festival, right? Because I'm an enabler of your festival celebration. Right. I'm a brand on the table which you celebrate. Correct. Okay. Correct. लेकिन जैसे ही आप आ जाते हो फॉर एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन पे, कॉन्वर्सेशन साल में 1-2 से ऊपर नहीं कर सकते हो आप. लाइक HP पिछले 5 साल से अगर आप HP के दिवाली एड्स देखोगे, वो सिर्फ एक चीज बोलता है, आई एनेबल SMEs. ठीक है. SMEs पहले साल उसने बनाया, एक बच्चा दिया आंटी को प्रमोट करता है, दूसरे साल टेलर आंटी को प्रमोट करता है. ठीक है. तीसरे साल एक जूस अंकल को पूरी कम्युनिटी ने प्रमोट किया, उस एरिया के सारे वर्कर्स या फिर जो बाकी एंटरप्रेन्योर्स थे. 4th ईयर एक पेंटर को HP के डीलर ने प्रमोट किया और 5th ईयर एक स्मॉल बिजनेस ओल्ड कपल के अंकल को एक डिस्टेंट रिलेटिव ने प्रमोट किया. और एनेबलिंग डिवाइस HP था सब. लेकिन आप 5 साल से ऐड देखते जाओगे, आप क्यों सोचे HP स्टैंड्स फॉर एनेबलिंग स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. क्लियर. करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल डाबर गुलाबरी, रिकॉल वैल्यू आएगी वहां पे. एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल डाबर गुलाबरी इज अबाउट वार्म लव, राइट? बिकॉज एक 13 साल की बच्ची डाबर गुलाबरी फर्स्ट एज अ स्किन केयर ब्रांड यूज करना चाहती है. ठीक है. और वो स्किन केयर क्यों करना चाहती है? बिकॉज वो अच्छा दिखना चाहती है. शी वांट्स टू इम्प्रेस दैट बॉय शी हैज फीलिंग्स फॉर, राइट? सो इट्स दैट वार्म फडी डडी लव. राइट. बट व्हाट इज द पॉइंट इन दैट वार्म फडी डडी लव? आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करते हो? यू से इट विद द रोज, वेयर वर्ड्स कांट से मच. एग्जैक्टली. सो फॉर डाबर गुलाबरी कन्वर्सेशन इज अ वैलेंटाइन डे where we want to only say warm fuddy duddy love with rose. For Aisha, conversation is a driver's day because we believe in upliftment of drivers every year. And हमने एक रिसर्च पेपर देखा जहाँ पे हमने कहा ड्राइवर्स को ट्रक ड्राइवर्स को अपलिफ्टमेंट चाहिए, रेन्यूमरेशन पे, इज्जत पे, रेन्यूमरेशन मतलब पैसा, रिस्पेक्ट, इज्जत, एंड थर्ड इज हेल्थ, जो कि फूड और बैक इश्यूज की वजह से होता है. राइट. करेक्ट. सो हम हर साल सिर्फ इन तीनों पे ही ड्राइवर अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं. आज आप किसी ट्रांसपोर्ट नगर पे जाके बात करोगे ना, कौन सा ट्रक ब्रांड ड्राइवर्स को सपोर्ट करता है? सब कहेंगे आइशर. सो दैट इज हाउ यू बिल्ड टॉपिकल, राइट? सो for us at Grapes, it has become very important to partner at a
core level of strategy Hmm. than anything else. And that's what has taken us from where we are. So grapes के साथ one word जो है वो emotion जोड़ दें. We are rebranding ourselves, Uh-huh. and you'll hear the one word that we are bringing together. Okay. Cool. So what all brands you are currently working with? So working with almost, I think, more than 90 odd brands. Oh wow. This year, and I'm not talking about last year's also, but currently this year we work with 90 odd brands. Some of them are in project, some of them are retainers. Some clients are really old as I am in the system. Okay. Like Mankind Pharma, I'm very, very proud about one of that client because we literally started with one brand. Now I'm working with 4 retainer brands, 9 brands on media, 2 leadership accounts, PR, Wow. everything around with them. And there's a lot of camaraderie that we have with that client. We also give a lot at stake. In fact, there were times when client wanted to move to another agency, they went and then they came back to us. So that's also very proud. Volvo Eicher is another one client for us where we've been working with them almost. I'll close, this year will be my 9th year with them. Wow. Yeah, so that's a good thing. Then we are working with a couple of other brands like Panasonic. 9 years with brand. That Yeah. means बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. Some clients, yes, and they also appreciate. But you know what I've realized with brands where we are working for larger time, one of the core USPs is collaboration. जब ब्रांड ये सोचता है ना उन्होंने एक एजेंसी हायर की है और एजेंसी का काम है सब कुछ करना, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क एवर. That never works. इट विल नेवर वर्क. अगर आप और एजेंसी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आके एक दूसरे का सर फोड़ लो, वो चलेगा मुझे, बट इट हैज टू बी टुगेदर where you come and actually think of ideas. We will come with some ideas. We'll think and mature it to one place and then we'll go back and execute it for you. Exactly. But जैसे कोई क्लाइंट मुझे बोलते हैं ना पिछले 6 महीने में मैंने आपको आइडियाज दिए सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए और आपने सिर्फ वही एग्जीक्यूट किए, दैट्स व्हेन आई रियलाइज दिस क्लाइंट इज नॉट कोलैबोरेटिव. बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड हम अभी आपके ब्रांड पे आए हैं, आप अपने ब्रांड पे 6-7 साल से काम कर रहे हो, आपको आइडियाज होंगे. हमारा जॉब है आपके आइडिया को एक अलग लेवल पे लेके जाना, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर. Then we are working with more clients, like we're working with Panasonic, we are working with Dabur, we are working with DS Group, we are working with Hindware. उनके साथ भी हमें 4 साल हो गए काम करते हुए. Then we are working with CRMs, we're working with Lacoste, the Whole Truth Food, and multiple such brands in multiple sectors. Unicharm is another client where I'm working with Mami Pocopan for almost 4 years now. Wow. And we've started with one campaign and now we're doing a lot more with them as well. In London, we are working with a lot of luxurious brands. We're working with Louis Vuitton, Burberry, Tom Ford, Chanel, Balenciaga. We're working with Philo Coffee. So a lot of there also we've almost started working with 40 odd brands. Wow. Yeah. So, but it's more project basis in London. We have a few retainers right now, like Ramsay Hospitals. We are working with. We just signed on with a cybersecurity firm. We're starting a couple of positioning exercises for new brands, new startups that are there. So that's the kind of clientele that we have. Okay. And how has been 2024 for Grapes Digital? I think I'm very, very happy this year. Honestly, because I think post-COVID, I was feeling very stagnated somewhere. Okay. Because मुझे ना growth समझ नहीं आ रही थी. To be very honest, in an agency business, अगर मैं यहाँ से एक पत्थर मारूँ ना 4 agencies मिल जाएंगी मुझे. Right? There's no entry. There's no barrier for entry because आपको क्या चाहिए? 4 आदमी चाहिए, 4 लैपटॉप चाहिए, एजेंसी बन गई जी. Right? But what you need to realize is कि एजेंसी को ना एक लेवल तक लाके स्केल करना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि आप जब एक छोटी एजेंसी होती हो ना, आपकी खुद की ओनरशिप है. सो वो जो एक बंदा फाउंडर है ना, उसके एफर्ट ओनरशिप पे वो एजेंसी चल रही है. लेकिन घंटे तो 24 ही है ना. आप जस्ट बिकॉज एंटरप्रेन्योर है तो भगवान ने आपको 48 घंटे तो दे नहीं दिए. करेक्ट. सो जब आप स्केल करके एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आप हर क्लाइंट को केटर नहीं कर सकते हो एज एन इंडिविजुअल. परफेक्ट. राइट? उस लेवल पे आपको ये एक टीम एक्चुअली चाहिए. लेसन है स्मॉलर एजेंसीज के लिए. एग्जैक्टली. उस लेवल पे आपको एक टीम चाहिए जो आपके साथ खड़ी हो सकती है. राइट? सो व्हाट वी रियलाइज इन द लास्ट 2 years कि हम 2 नए क्लाइंट लेके आते थे, 2 नीचे से निकल जाते थे. 2 फिर लेके आते थे, 2 नीचे से निकल जाते थे. क्योंकि जो टीम आपकी काम कर रही है ना, वो उस पैशन और ओनरशिप से काम नहीं कर रही है. और आप कितना टाइम डाल सकते हो हर क्लाइंट पे? नहीं डाल सकते. राइट? सो या तो सो वी टुक अ सीट बैक दिस ईयर. वी सेड लेट्स फिक्स टीम.
until unless I don't get people who are driving this with ownership, it will become very difficult for me to move forward. So we made a lot of changes in the way Grapes operate at the team level. And now we are operating in a way where we are driving work with ownerships, right? And that's how we've been able to scale this year a lot more faster. Right. So touch wood, for me, 2024 is very, very good. Great. That's great. What was your first reaction when you saw my message on LinkedIn that I am planning to invite you on my podcast? मैं honestly जवाब दूं, मुझे ना LinkedIn पे ना कुछ 15 मैसेजेस आते हैं on a regular basis, ठीक है? एंड मुझे एक दिन में 800 व्हाट्सएप आते हैं और मुझे कुछ 300 ईमेल्स आती हैं एंड आई डू ऑन एन एवरेज 14 to 15 मीटिंग्स इन अ डे. ठीक है, माय कैलेंडर इज लाइक ब्लॉक. तो आप समझो मेरे पास क्लियरेंस टाइम हर चीज को क्लियर करने का कितना है, राइट? इट्स वेरी मिनिमल. So I just skim through a lot of things and I pick up words from those messages to see if this makes sense. ठीक है? So when I first saw your message, I was like, yeah, podcast fun, let's try this. Okay. The second thing when I saw was your channel, and I saw the numbers were growing, right? So I said, is it worth it doing it? But when I saw your profile and one or two of your setup, I thought this was a very fun space to be in. Right. So those were my reaction when I saw your message. Okay, thank you so much, Shraddha. Thank you so much for coming, and indeed it was an insightful discussion we had. एंड सोशल प्रूफ को और अच्छे से समझ पाए हैं आपके थ्रू. आई होप हमारी ऑडियंस भी समझ पाएगी. I think it was a pleasure working. It was a pleasure being with you guys. It was so much fun. I think it's great to have places like you where we can actually open up of what we are thinking as marketers. Otherwise, you have to be very composite when we are speaking in front of clients to say this is what we need to sell you. Yeah. So that is our intent. I mean, marketeers or marketing agencies are continuously marketing brands. Yeah. Who is marketing them? Who is marketing the marketeers? So that's the intent. That's the objective with which we started all this. So guys, thank you so much for watching this entire podcast. If you like this podcast, do share it with other people, other marketeers, and अपने friends, family में बताइए कि social proof कैसे काम करता है and how impulse purchases happen. And thank you so much, Third Wave, for being our valuable venue partner. And we'll be shooting next 10 podcasts at Third Wave Cafes only.